بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستوں، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائیل بن قران بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات و واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کی حیران کن واقعات بھی آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سورج کے فرشتے اور ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعات زیادہ معروف ہیں۔ یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیو کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا کریں اور سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایزر آسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیا کرتے۔
دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پہ سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پہ آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال ابن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ 4تھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح 4تھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پہ ہیں، ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا
कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर की झेल में इस हदीस को जिक्र करते हुए इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलिकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलिकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलिकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, क्या आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही? फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत को लेकर काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक रिवायत तो यही है जिसका अभी जिक्र हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की वफात चौथे आसमान पर हुई। बास का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा मौजूद हैं और सूरज के फरिश्ते के साथ आपकी दोस्ती और तुलुए आफताब के मुकाम पर आपकी वफात की रिवायात भी मिलती हैं। आइए आपको इस बारे में हदीस नबविया की रोशनी में तफसील से बताते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कि मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा था। तो इस हवाले से इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में वाक़या मेराज के जिक्र में हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात कौन से आसमान पर हुई इसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी अपनी जामिया तिरमिज़ी में हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को शब मेराज चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा कुतुब तफासीर में आप अलैहिस्सलाम के छठे आसमान पर मौजूद होने का जिक्र भी किया गया है। प्यारे दोस्तों, सूरह मरियम की आयत 57 के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मुकाम पर उठा लिया था। ये बुलंद मुकाम क्या है, इसकी मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं। बाज मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज के नजदीक इससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है और बाज के नजदीक इससे मुराद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है। तो चलिए देखते हैं कि कुतुब तफासीर में इस बारे में किन किन रिवायात का जिक्र हुआ है। इनमें पहली रिवायत सूरज के फरिश्ते से दोस्ती वाली मुलाहिजा फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि एक मर्तबा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफर में रहे। धूप की तेजी और तपिश से आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफ महसूस की। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, सूरज की तपिश हल्की कर दे और उसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे अगली सुबह आफताबी फरिश्ते ने खिलाफ मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की। इसने अल्लाह ताला से इस बारे में दरियाफ्त किया। अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया, मेरे एक बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरखास्त की थी और मैंने उसकी दरखास्त मंजूर फरमा ली। ये सुनकर फरिश्ते के दिल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती का शौक पैदा हुआ। चुनाचे उसने अल्लाह तबारक व ताला से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने की इजाजत मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही आफताबी फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता उनसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने उससे कहा, तुम मलिकुल मौत से सिफारिश करके मेरी मौत के वक्त में ताखीर करा दे, ताकि मुझे अल्लाह ताला की इबादत का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके और मेरे नेक आमाल में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। आफताबी फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन नहीं, अगरचे किसी की मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता, मगर मैं मलिकुल मौत से आपकी सिफारिश जरूर करूंगा। फिर वो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान पर ले गया। उसने आप अलैहिस्सलाम को तुलुए आफताब के मुकाम के करीब छोड़ा और खुद अकेला ही मलिकुल मौत के पास चला गया। मलिकुल मौत के पास पहुंचकर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। उसकी बात सुनकर मलिकुल मौत ने कहा, किसी की मौत में ताखीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं, अलबत्ता तुम्हारी खातिर इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी दोस्त की मौत का वक्त बता दूं ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर ले। इतना कहकर मलिकुल मौत ने अपने रजिस्टर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम देखा।
फिर वो आफताबी फरिश्ते की तरफ तासुफ भरे अंदाज में देखकर बोला, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। इसका नाम जिंदों की फहरिस्त में नहीं, मेरे रजिस्टर में यह दर्ज है कि तुम्हारा वो दोस्त तुलूए आफताब के मुकाम के करीब फौत होगा। आफताबी फरिश्ते ने जब मलिकुल मौत की बात सुनी तो जल्दी से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे। दोस्तों, इस रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात तुलूए आफताब के मुकाम पर हुई है। चलिए अब आप अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से एक दूसरी रिवायत आपको बताते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत इस तरह से है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत करते थे। शाम के वक्त आप अलैहिस्सलाम के नेक अमल जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों से ज्यादा होते थे। जिस फरिश्ते के जरिए आप अलैहिस्सलाम के नेक अमल बुलंद होते थे, इस फरिश्ते को आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शौक हुआ, लिहाजा उसने अल्लाह ताला से आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। चुनाचे वो फरिश्ता जमीन पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आप अलैहिस्सलाम को अपना तारुफ करवाया और इतनी ज्यादा इबादत इलाही पर आप अलैहिस्सलाम की तारीफ की। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अगर तू फरिश्ता है तो क्या तू मलिकुल मौत से मेरी मौत में ताखीर की सिफारिश कर सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपने रब की इबादत के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर इस फरिश्ते ने जवाब दिया, किसी की मौत में ताखीर करवाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मलिकुल मौत से इस बारे में जरूर बात करूंगा। चुनांचे इस फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और आसमान की तरफ ले गया। जब इन दोनों की मलिकुल मौत से मुलाकात हुई तो इस फरिश्ते ने मलिकुल मौत से आप अलैहिस्सलाम की मौत में ताखीर की सिफारिश की। मलिकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम पूछा, फिर अपना रजिस्टर देखकर बताया कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब उनकी उम्र में कुछ भी बाकी नहीं। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहीं आसमान पर ही वफात पा गए। इस रिवायत के मुताबिक भी आपकी वफात आसमान पर हुई है, लेकिन कौन से आसमान पर, इसका तज़किरा नहीं है। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दीन की तबलीग के अलावा अपना वक्त जमीन की सयाहत में भी गुजारते थे। आप कपड़ों की सिलाई भी करते थे, मगर इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम कभी भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहे। जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बराबर आपका नेक अमल बुलंद होता था। मलिकुल मौत अल्लाह ताला की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सयाहत के लिए निकले तो मलिकुल मौत अल्लाह से इजाजत लेकर आपके पास आया। उसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी सुहबत व मय्यत की इजाजत अता फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी की बात सुनकर कहा, तू मेरी संगत नहीं निभा सकेगा। मलिकुल मौत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी ताकत अता फरमाएगा। बहरहाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसे अपने साथ रख लिया। फिर वो दोनों सफर पर रवाना हुए। असर के वक्त एक जगह उन्हें एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नजर आया। बकरियां देखकर मलिकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए रोजा इफ्तार करने के लिए हमें बकरी का एक बच्चा पकड़ लेना चाहिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी बात पसंद न आई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, दोबारा ऐसी बात न करना, तू मुझे नाजायज माल खाने की दावत दे रहा है। रिस्क अल्लाह ने देना है, जब शाम होगी तो हमारा रिस्क बहुत जाएगा। चुनाचे शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिस्क भेज दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को खाने के लिए कहा, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे भूख नहीं है। फिर खाना खाकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हो गए। मलिकुल मौत भी उनके साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए और नींद की शिद्दत से ऊँघने लगे, मगर जब उन्होंने अपने साथी को इबादत करते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। वो बड़े निमाक से अल्लाह की इबादत कर रहा था। इस पर थकावट और नींद के कोई आसार दिखाई न देते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ी ताज्जुब अंगेज बात थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि कोई भी उनसे ज्यादा इबादत की ताकत नहीं रखता, मगर ये आदमी साबित कर रहा था कि इसमें उनसे भी ज्यादा इबादत की ताकत है। बहरहाल अगले दिन सुबह होते ही वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। फिर जब दिन के आखिरी हिस्से में वो अंगूरों के एक बाग के करीब से पहुंचे तो मलिकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ अंगूर यहाँ से ले लेने चाहिए। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कोई भी गलत अमल करने से मना किया था। जब शाम हो गई
तो हमारा रिस्क भी पहुंच जाएगा। इसके बाद शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिस्क भेज दिया। इस मर्तबा भी मलिकुल मौत ने खाने से इनकार किया। खाने से फारिग होकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। मलिकुल मौत भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगा। इस मर्तबा भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले की तरह जल्द ही थक गए, मगर उनके साथी पर थकावट का कोई असर दिखाई न देता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, मुझे तुम आदम की औलाद नहीं लगते। अब मलिकुल मौत ने अपना तारुफ करवाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनका साथी अल्लाह ताला का वो फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज करता है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म दिया गया है? नहीं, आपके बारे में अभी मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। मलिकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, अगर आप अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आपकी संगत अख्तियार की है। तो 3 दिन और 3 रातों से मुसलसल मेरे साथ रहा है। क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज नहीं की? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलिकुल मौत ने बताया, ये दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पे बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज करने का हुक्म होता है तो मैं फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, खाह वो जमीन के मशरक में हो या मगरिब में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से कहा, जिस जात की खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है, इसी जात के वास्ते तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलिकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तो मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलिकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाजत तलब की। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी। इजाजत पाकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फिर हस्बे वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलिकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुंचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया? मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं कि सरसरी सी नजर से दोज़ख भी देख लूं। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलिकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रही हो, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसको देखकर मेरा खौफ पड़ जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज्यादा मुतवज्जे हो जाऊं। चुनाचे मलिकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नुम के दरवाजे पे गए। जब किसी दारोगे को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नुम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलिकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत न देता। मेरे साथ अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, वो एक नजर जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के किनाके के बराबर जहन्नुम को खोला। इससे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लौ लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलिकुल मौत ने फौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक नजर जन्नत भी दिखा दो ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलिकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पे पहुंच गए। जब वहां पर मौजूद निगरानों को मलिकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई, मगर जब मलिकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो पुरसुकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाजा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आपने मलिकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलिकुल मौत ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी की। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, वहां के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलिकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से बाहर तशरीफ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ना चाहते हो तो भी मैं झगड़ा करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलिकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा,
آپ کے پاس झगड़े की क्या दलील है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने ये जायका एक मर्तबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होगा। मैं एक मर्तबा जहन्नुम पे वारिद हो चुका हूँ, क्या मैं बार बार जहन्नुम में वारिद हूँगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे, क्या मैं उस जन्नत को छोड़ दूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस अलैहिस्सलाम है। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत उनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। ये जहन्नुम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी उन्होंने जन्नत में दाखिल होना था इसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, उन्हें जन्नत में ही रहने दो। प्यारे दोस्तों, ये थी रिवायात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हमने आपकी गोश गुजार की है। अब आप अलैहिस्सलाम कहाँ हैं और किस हाल में मौजूद हैं, जन्नत में या किसी आसमान पर, यह अल्लाह ही के इल्म में है। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि आप अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। हमारी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये ईमान अफरोज वाक़यात पहुँच पाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल अल खैर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।